So, hello students, we will look into this module 5 in your subject management and entrepreneurship, and this deals with micro and small enterprises. So, we look into the definition of micro and small enterprises, what are the characteristics, advantages, disadvantages, okay? Then what is government policy? Government of India has a policy towards these industries. Yeah. We look into what are the various institutions which help in setting up an industry. Okay, there are many industries like SEEDB, KIADB, KSSIDC, TechSoc, KSFC, DIC. So these all things we will see. Okay. So first of all, this micro and small enterprises. See, this definition is given by Government of India, not by us, because what is micro, what is medium, what is big industry, not heavy industry, not stated by us, it is by government. So different types, they keep changing also. So in 2006, they have come up with this based on the classification, like micro is less than 25 lakhs. If you are taking a plant and machinery, like factory, now again we will come back to some case study of manufacturing of one battery operated vehicle. I think that was the discussion going on. So suppose you want to manufacture a battery electrical vehicle. So you require some plant machinery, okay? Land, building, electrical connection, then you require that you have to get the chassis, weld the chassis, you make the chassis, you get some batteries, get some tires, get electrical connections, these lights, glass fittings and all, correct? So all these things are required. Now try to understand, visualize that you are going to start an industry which requires, which is into the manufacturing of scooters, like electric vehicles, right? So first definition is, in the plant of machinery, if the investment is less than 25 lakhs, it is called as a micro enterprise. Micro, small and medium. Micro, small and medium. So what is small? Small means more than 25 lakhs but less than 5 crores in plant and machinery. Okay. And more than 5 crores will become medium. More than 5 crores but less than 10 crores will become medium enterprises. This is for manufacturing. This is for manufacturing sector, because we are manufacturing a BEV. There is another sector called as service sector, like your IT. IT field is a service sector. For that, the definition is different. Micro is 10 lakhs, small is 10 lakhs to 2 crores, and medium is 2 crores to 5 crores. Understood now? So the different classification for manufacturing sector as well as service sector. Okay. Now you understood? So why these industries are required? Why industries are required? Because if the nation has to grow, then how it will grow? Nation, country has to grow. How it will grow? Only three ways. One is agriculture, second is manufacturing, third is service. Three things. I told you, I think at the beginning of the discussion I told you. So the nation, either by agriculture or by manufacturing or by service sector. And today India, I think 60% of the Indian revenue hai na, it comes through service sector. Today, 50 years back, very good. Like independence and just post independence, agriculture. We are all mostly agriculture nation. Agriculture. But after that, after independence, then the government started so many industries and all. They like all the big industries I was telling you, Bharat Heavy Electricals, Bharat Earth Movers Limited, all these big industries they started. And then small to cater to those big industries, small industries started. Then manufacturing. From agriculture we came to
manufacturing. India became manufacturing hub. ITI, phone manufacturing, JCB manufacturing, all this started. Trains manufacturing. But today, India is service sector, mostly IT based. Okay. Now, so what is the characteristics? How you say it is a small industry, big industry? In small industry, it will be like one man show. It will be like mostly one man. So suppose like in this college only, so owned by one person. Got it? But if it's a big college, then there will be lot of people there. Understood, no? Get it? Like your Grasim Industries, not one person. Hey, so in small industry, the owner will be manager. He will only manage. करेगा नहीं, वो खुद का पैसा खुद ही मैनेज करेगा. बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में नहीं, वो हायर करेगा मैनेजर्स को. सो इसका हम जल्दी कर डाल सकते हैं. स्मॉल इंडस्ट्री यू कैन स्टार्ट अर्ली. बिग इंडस्ट्री मीन्स लॉट ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड. राइट, टाइम टू स्टार्टिंग. एंड इज नॉर्मली स्मॉल इंडस्ट्रीज दे विल टेक लोकल रिसोर्सेज, लोकल पीपल एंड डू. बड़ा इंडस्ट्री तो बाहर से भी मंगाएगा. कहते ना, रॉ मटेरियल्स वॉट एवर यूर प्रोक्योर. सपोज आई टोल्ड नाउ वी आर स्टार्टिंग ए स्मॉल इंडस्ट्री लाइक scooter manufacturing, then you local Goa, Bangalore. But if you are a big like now the Ola and all scooters, so they will go from world, not only India. वो जो भी दुनिया में सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा, वो लेगा ना. Got my point, ना? And mostly this small scale industries they are in rural backgrounds where government is promoting industrialization. क्योंकि कारवार सिटी में थोड़ा इंडस्ट्री डाल सकते हैं. वो पॉल्यूशन होगा, बहुत तकलीफ होगा, आवाज़ आएगा. तो वो दिस इंडस्ट्रीज आर नॉर्मली एट द लाइक शेरवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया, यू गॉट मडगांव वर्ना इंडस्ट्रियल एरिया. सो दे आर अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल लोकेशंस. ओके, सो यू अंडरस्टूड व्हाट आर दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ characteristic, how you identify that cut small and big industry. Okay, now what are the advantages? Based on this we can tell advantages. क्या होगा अगर हम लोग एक छोटा कंपनी खोल दिए तो क्या एडवांटेज होगा? हाँ, ज़्यादा लॉस नहीं होगा. नेगेटिव की पॉजिटिव बात करो ना. क्या होगा? Lester? Very good. Lester has become really wise. I should appreciate you यार. बहुत बदल गया तुम. So, miss, local people will get jobs. There will be creation of jobs ना. ये बनाने के लिए जॉब चाहिए, उसको बेचने के लिए लोग चाहिए, शोरूम में लोग चाहिए, उसको रिपेयर करने के लिए. तो लॉट ऑफ चेंज विल बी देयर फॉर जॉब क्रिएशन. नेक्स्ट. यस, it will lead to another industries also. एक इंडस्ट्री आ गया तो उसके बाजू में वन मोर इंडस्ट्री कम. यू सी ना, पान शॉप, अगर कपड़े का शॉप एक लगाता है दूसरा भी लगा देता है. करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है. इंडियन टेंडेंसी एक दिया, अच्छा ही इज डूइंग वेल, सो लेट मी आल्सो. करेक्ट है ना? अभी नाउ सी दिस आयशा इज थिंकिंग, सो आई विल आल्सो बिकम प्रिंसिपल. देयर मेनी पीपल आर सेइंग, अरे ये बन गया तो मैं भी बनती हूँ. तो ऐसा दिमाग में आदमी को नहीं, इट इज़ गुड थिंग. एक को देखिए कंपटीशन में यह आ जाता है. ठीक है. सो दिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दे हेल्प बिग इंडस्ट्रीज. करेक्ट. हाँ, नाउ we'll come to the important aspect, how to start an SSI. Suppose you have planned to start a industry, a small scale industry. So how you are going to start? So first you should select a project. Correct? क्या करना है? Somebody told we want to open a hospital. Somebody told we want to have a automobile service station. Somebody say want. So you should identify a project. And how you are going to identify a project? Huh? By? Exactly, beautiful point. You have to understand the needs. क्या चाहिए? Need. Even this, I am teaching design thinking ना. I think a new subject for you. You can Google it. Very good subject. You missed that. Design thinking means first is you should know the needs of the customer. You cannot make a product and sell. लोगों को चाहिए क्या?
कब चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसा चाहिए, क्या रेट में चाहिए, कितना चाहिए, उनको देख के हमको बनाना है। दिस वॉज नॉट द केस अर्लियर। अर्लियर क्या, हम बना रहे, बेच रहे, तुमको खरीदने तो खरीदो, नहीं तो चलते बनाओ। दैट इज नो मोर द केस। Like you have B schools, business schools, where they teach BBA, MBA. Similarly, there are D schools now, design schools, where they teach about this IDT, innovation and design thinking. Customer needs have to be mapped. You should understand that. Correct? And based on that, you make a project. And the project should be financially viable. है कि नहीं? हम लोग पैसा डाले तो उसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आना चाहिए. पैसा शुड कम रिटर्न, है ना? Okay, then you will find the location. So now you are from Karwar, so you, if I say you open in Japan, you will open, no why Japan, I will open here only, correct na? Location. Then feasibility study. I think other day we discussed feasibility. I think 3-4 feasibility. One is technical feasibility. वो बना सकता है क्या नहीं, टेक्निकली बना सकता है क्या नहीं, ठीक है। इवन टुडे इफ आई एम करेक्ट, लिथियम आयन बैटरीज दे आर इम्पोर्टेड, क्योंकि हम लोग का अभी टेक्नोलॉजी नहीं है उतना बड़ा बड़ा बैटरी बनाने का, समय है ना, तो टेक्निकल फिजिबिलिटी। सेकंड इज वेरी गुड सोशल फिजिबिलिटी, मीन्स सोसाइटी, अगर दिस लेस्टर ओपन से फैक्ट्री है, देन पीपल मे लाइक इट, मे नॉट लाइक इट, है ना। अगर वो जाके सब गंदा पोल्यूशन डालेगा कुछ, तो लोग लाइक नहीं करेंगे। इफ यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम, सोशल ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, करेक्ट है कि नहीं? सो नहीं, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग, सपोज लेस्टर फादर इन लॉ गिव्स हिम सम मनी, सो he has to earn na. So by the time he earns, his all hairs will go grey, बुढ़ा जाएगा। So, just joking. So, whatever you invest, you should get returns on that. Correct? That financial feasibility or financial viability they call. Social, financial, technical, these are all required viabilities. Okay. Then you make a project profile. You know project profile, na? See what you want to do, when you don't, where you don't do. Nowadays, I think in bharatmatrimony.com you will have a lot of profiles. कौन लड़का है? I have not gone through that. I want to go through that. The profiles are available. I think now video profiles are also available. I told. Video call is there available. नहीं, video profile means see. हाँ, introduction के लिए. अभी सी इफ यू लेट्स लुक एट अ फेस, एवरीबडी लुक्स अट्रैक्टिव बिकॉज लॉट ऑफ मेकअप दे डू एंड सिट, बट बाद में जब देखोगे तो कैसा चलता है, ऐसा पेट है क्या, दिस ऑल थिंग्स आर विजिबल ओनली व्हेन यू सी फिजिकली ना। यू मे थिंक आई एम हैविंग 6 पैक, देन यू सी ओह दिस इज 0 पैक, तो यू विल अंडरस्टैंड कि लाइफ रियल में अलग है, वो पिक्चर में पीपल प्रेजेंट वेरी नाइसली, करेक्ट ना। ओके, देन बिजनेस प्लान प्रिपरेशन। इसके बाद यू हैव टू गो टू DIC, किधर जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, या कारवार में भी है वो DIC का ऑफिस। देयर यू हैव टू रजिस्टर कि मुझे ऐसा करना है। किसके पास जाना है? अभी तुमको शादी करना है तो किधर जाने वाले? रजिस्टर ऑफिस में जाने वाले कि नहीं, कि बाबा मेरे को शादी करना है, हमारा 18 साल हो गया, मेरा बाप मान नहीं रहा, ये लड़की के साथ मैं शादी कर रही। अभी 20 कर दे क्या? नहीं, स्टिल नहीं, इट्स नॉट टेस्ट पास द पार्लियामेंट ना, देन प्रेसिडेंट साइन करने के बाद वो आता है, ठीक है, होने वाला है, सुना मैं अभी। तो 21 तो तुम लोग है ही नहीं, तो तुम्हारा नॉट एलिजिबल, ठीक है। सो यू हैव टू गो एंड रजिस्टर, like otherwise marriage registration offices will be there na, you have to go and register. Even land, if you buy a land or buy a flat, तो रजिस्टर करना पड़ता है ना कि भैया हमने ये खरीदा फ्लैट, इसको इतना पैसा दिया, ये क्या, वो फीस भर के करना। सिमिलरली यू हैव टू रजिस्टर दिस आल्सो। देन यू हैव टू ऑब्टेन द क्लियरेंसेस, यू हैव टू ऑब्टेन द, वो कारपोरेशन का होगा तो उसका, पोल्यूशन का होगा तो उसका, सेल्स टैक्स वाले को उसको बोलना पड़ेगा, तुम बेचोगे ना GST का, उसका, ये सब क्लियरेंसेस लेना पड़ेगा। देन यू हैव टू अरेंज फॉर लैंड चाहिए ना,
बनाने के लिए किधर बनाएगा, घर में बना नहीं सकता ना, तो लैंड, तो अभी कहाँ लैंड है, शेरवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया, तो वहाँ पे जाके लैंड तो ले सकता है, नहीं तो शेड भी ले सकता है, शेड भी अवेलेबल है, वो रेडीमेड ऐसे तुम देखे ना, यू सीन शेरवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया here on way to railway station na, there is small industrial area Karwar where industries are there. I have been there. Then after you buy that you may even take it on rent. Why to buy? खरीदेगा तो बहुत कॉस्टली पड़ता है ना, तो इनिशियली मामू पैसा दे नहीं देगा अपना, तो then you can take it on rent. Now he is thinking how to स्केच बना रहा है अभी वो, सो यू कैन फिलहाल क्या कर, लेस्टर भाड़े पे ले ले, वो शेड मिलता है, लाइक हाउसेस आर अवेलेबल ऑन रेंट, सो शेड्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन रेंट. देन तुमको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पानी चाहिए, करंट चाहिए, ठीक है, रखने के लिए चाहिए, मूव करने के लिए चाहिए, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर यू कैन क्रिएट. आई विल गिव एन एग्जांपल, लाइक आई हैड विजिटेड टाटा हिटाची प्लांट, ये जेसीबी बनाते हैं ना, टाटा हिटाची इन धारवाड़, सीनियर्स वे टेकन, सो दैट इज अ बिग प्लांट. वो बड़े बड़े मशीन बनाते हैं ना, अब उसको थोड़ा आदमी उठा के जाता है, नहीं उठाता. तुमने लिफ्ट देखा है, लिफ्ट ऐसा ऊपर जाता है, तुमने एस्केलेटर देखा ऐसा जाता है. उनके पास ट्रैवलेटर है इन मुंबई एयरपोर्ट, आई थिंक यू हैव सीन मुंबई एयरपोर्ट, द ग्राउंड ओनली इट विल स्टार्ट मूव स्लो मूविंग, करेक्ट है. सिमिलरली इन द इंडस्ट्री आल्सो इट इज देयर, वो असेंबल करते हैं, वो स्प्रॉकेट लगाते हैं, चेन लगाते हैं, उसका हाइड्रोलिक्स लगाते हैं, वो ऐसा मूव होता है स्लोली स्लोली स्लोली, वो आदमी आके लगाता है, सीट लगा रहा है, उसका डब्बा लगा रहा है, हाइड्रोलिक्स बकेट लगा रहा है, सब लगा रहा है, टर टर टर, न्यूमेटिक टूल्स, इलेक्ट्रिक टूल्स से टाइट कर रहा है, वो ऐसा स्लोली स्लोली मूव हो रहा है. नोबडी शिफ्टिंग इट, इट गेट्स शिफ्टेड ऑटोमेटिक बिकॉज दे आर हेवी इक्विपमेंट. वैसे तुम्हारे को चाहिए तो क्रेन चाहिए, तो अभी के लोगों के पास एनर्जी नहीं है, सो यू मे रिक्वायर क्रेन टू मूव द आइटम, करेक्ट है कि नहीं. देन तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दिया, बिजनेस प्लान, पैसा ले लो, बैंक से लो, इससे लो, किसी से भी लो, फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लो, एंड देन इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट. ओके, नाउ तुम्हारा लाइसेंसेस क्या है, लाइसेंसेस क्या है, मतलब अगर लैंड लिया तो यू कैन नॉट इन एग्रीकल्चर लैंड यू कैन नॉट डू दिस बिजनेस, सो यू हैव टू कन्वर्ट दैट एग्रीकल्चर लैंड इनटू नॉन एग्रीकल्चर लैंड. ओके, देन बिल्डिंग तुमने लिया, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का अप्रूवल लेना पड़ता है, बिल्डिंग के लिए यू हैव टू टेक अप्रूवल. देन फैक्ट्रीज एक्ट, दिस फैक्ट्रीज आर कवर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, क्या दे आर कवर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, सो यू हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम देम. एंड लेबर डिपार्टमेंट, बिकॉज यू विल बी एम्प्लॉय पीपल, लेबर, तो लेबर डिपार्टमेंट को भी बोलना पड़ता है, यू आर एम्प्लॉइंग लेबर ना, सो यू हैव टू टेल देम. देन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तुम कुछ भी गंदा ये डाल रहे हो तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये होना चाहिए. देन ट्रेड लाइसेंस, तुम बेचोगे तो ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा. देन फूड अडल्ट्रेशन, फूड का ये है ना, डीलिंग विद फूड, बट फूड का भी लिया तो फूड का लाइसेंस भी लेना पड़ता है. और गवर्नमेंट ऑफ इसका इंडिया का वो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन अगर चाहिए तो वो भी लेना पड़ता है, ठीक है. एंड तुम्हारे पास अगर फॉरेन से रॉ मटेरियल लाना है तो उसके लिए भी ये लेना पड़ता है, यू कैन नॉट टेक इट फ्रॉम डायरेक्टली, तो उसका परमिशन लेना पड़ता है. बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेना पड़ता है, एक्साइज ड्यूटी कंसेशन लेना पड़ता है, ठीक है. ओके, नाउ लोन में देर आर टू टाइप्स ऑफ लोन. लोन में कितना है, टू टाइप. आई विल गिव एग्जांपल. सपोज तुम घर बना रहे हो, यू आर बिल्डिंग ए हाउस, सो यू विल टेक ए बिग लोन 20-25 lakhs, राइट, दैट इज नोन एज टर्म लोन, दैट इज नोन एज टर्म लोन. बहुत लंबा पीरियड रहता है, बहुत बड़ा पैसा रहता है. तुम लोग इसलिए लोगे, लैंड के लिए, बिल्डिंग के लिए, मशीन्स के लिए लोगे, दैट इज टर्म लोन. सेकेंड, वर्किंग कैपिटल लोन, मीन्स सामान लाने का, प्रोसेसिंग करके भेजने का, उसको छोटा लोन, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल लोन. समझ में आया ना. टर्म लोन एंड द टर्म लोन इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल लोन, बिकॉज कैपिटल मीन्स लैंड, बिल्डिंग, बड़ा बड़ा कॉस्ट. वर्किंग कैपिटल मीन्स ओनली वर्किंग, डे टू डे, महीने का, 2 महीने का, बट ये बिल्डिंग 2 महीने का नहीं ना, 20 साल 30 साल चलता है, 50 साल. समझ है ना. व्हाट इज कैपिटल लोन एंड वर्किंग कैपिटल लोन. Capital is big. Okay, now let us look into different organizations. The last part is
different organizations which deal with this. Now तुम्हारे को इंडस्ट्री खोलने के लिए क्या क्या चाहिए? Tell me. What all you require? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है अभी, है ना? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है. Now you tell me what are required and who is providing that. I'll tell you. I'll go this other way around. This is a different style I am approach making now. You want to start an industry. We have decided on the industry. So what you require? You require land. Then building or shed. Then raw materials. Very good. तुम्हारे को raw materials चाहिए. Raw materials. Then electricity चाहिए. Very good. Very good. Electricity. Then water supply. These are called utilities. Water supply. ठीक है. Then next manpower. Very good. Automatic थोड़ा ना बनने वाला है. Manpower. Then very good. Machinery and plant. We call it M and P. Machinery and plant. बाद में finance. First finance. Now Lester, if you are not working, simply after degree you are sitting at home, कोई लड़की देगा तेरे को? नहीं देगा ना? तो बेटा कि नहीं? सीख. तो फाइनेंस और नेक्स्ट हो गया. अभी बनाने के बाद क्या करने वाला? उसको बेचने वाला, घर में रखने वाला है? You require transport facility. You are going to sell it, na? You cannot keep. So you require transport. Then you want to sell that product, na? Marketing. I think other day I told you about marketing and sales. I told you, na? Correct? Now you understood? You require, like primarily big, मोटे तौर पे, in big terms, you require land, you require building, you require finance, you require raw material and utilities, like you require electricity, water, transport, ठीक है? You require manpower, you require machines, and बनाने के बाद you have to sell it. So you require. Now government what it has done, now listen carefully. Government what it has done, now अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से organizations खोल के रखे हैं. ठीक है? There are many organizations which are helping industries. Now I'll read one by one. Now you have to first get registered. I told you have to go to DIC, correct? District Industry Center. Every district it is there. Every district, almost all districts of Karnataka you have, and even India you have got DIC, District Industry. वहाँ registration, marriage registration. Don't rush for your marriage registration. I am just giving example. Because principal is telling, then you say ऐसा बोल दिया, ऐसा नहीं है. ठीक है? Just okay. तो registration के लिए DIC के पास जाओ. Now ये land building का है ना, कि buying land, converting into NA, because I told you can't have land is agricultural land, you can't make a business there, so you have to convert it to NA. बड़ा business, it has to go to DC office, it takes a lot of time. तो what government has done, थोड़ा help करेंगे इनको लोगों को. So what they have done, like your Karwar Sherwad na, here Goa, you have seen Varna industrial area, Goa right side of the road it is there. What government has done, local state governments and all, they have taken land. Government can take land, they will buy land from farmers, thousands of acres they will buy land. Government के पास आ गया. अब गवर्नमेंट उसमें रोड बनाओ, पानी का व्यवस्था करो, ठीक है, ड्रेनेज का व्यवस्था करो, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट करो, गवर्नमेंट करता है. एंड इवन दे बिल्ड शेड्स ऑल्सो, इवन दे बिल्ड स्टैंडर्ड शेड्स दे बिल्ड. तुमको चाहिए एक्स्ट्रा चाहिए तुम बना सकते हो, स्टैंडर्ड शेड्स भी बनाते हैं. सो दिस नाउ दिस इज डन बाय, इन कर्नाटका इट इज डन बाय KSSIDC, Karnataka Small Scale Industries Development Corporation. And there is something called land building and shed के लिए KIADB,
ये है ना तुम्हारा शेरवाड़ में जो शेड्स है ना, यू कैन सी देयर KIADB, कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड, कर्नाटका, ठीक है. सो 1960 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर्नाटका स्टार्टेड this KIADB, a part of KSSDC, कर्नाटका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसका पार्ट है KIADB को बनाया. व्हाट दे डू, दे एक्वायर्स लैंड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, डेवलप्स एंड अलॉट डेवलप प्लेसेस फॉर एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है. एंड एक्चुअली ऑनेस्टली टेलिंग, कर्नाटका लॉट ऑफ बिग इंडस्ट्रीज आर देयर इन बेंगलोर. They are all because of this. Like government के factories है ना, I was still discussing about PSUs in my earlier class, public sector entity, like BL, Bharat Electronics Limited, HAL, Hindustan Aeronautics Limited, NGF, New Government Electrical Factory, ये सब बनाने के लिए ये लोग ही लैंड लेते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए ना लैंड के लिए, लैंड लेना इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है ना. So it has got almost like 100 industrial estates. This cases 100 कर्नाटका में, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स एंड तालुकास इट हैज गॉट, ठीक है. सो व्हाट दे मेक रोड्स, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, वाटर सप्लाई, वहाँ बैंक, पोस्ट, ये सब कैंटीन सब अरेंज करते हैं. रेडी बिल्ट शेड भी बना के देते हैं लोग, ठीक है. सो इसका ऑफिस किधर किधर है, बेंगलोर, मैसूर, बेलगाम, गुलबर्गा, हुबली, तुमकुर, शिवमोगा, मंगलूर, एवरीवेयर, ऑल बिग टाउन्स it is there, correct. So what is their objective? To promote and develop SSI in state. What is SSI? Small scale industry. Very good. Then see, अभी तो बेंगलोर में सब कुछ है, बट छोटे छोटे प्लेसेस में होना चाहिए ना. सो इट कंस्ट्रक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एस्पेशली इन बैकवर्ड एरियाज. इवन कारवार इज अ बैकवर्ड एरिया इंडस्ट्रियली, डोंट फील बैड है, इंडस्ट्रियली एक्चुअली. हाँ, you will tell something to me, then I feel bad, sometimes. Then we have to develop SSIs. We have to develop. Actually, this topic now I feel it has to slightly revise, because now the jamana is of startup. The jamana is of startup. Incubation center. I think that is not in your syllabus, but that should come. You know what is incubation? इंक्यूबेटर सुना नाम, इंक्यूबेटर कहाँ सुना? वेरी गुड, सेम थिंग. Incubator you have heard in hospital, because when there is a delivery and the child is born prematurely, 9 months के पहले ही हो गया ना, तो the child is not very stable, थोड़ा अभी उसका डेवलपमेंट बाकी है, तो उसको क्या करते हैं, वो गर्म लाइट में कंट्रोल्ड कंडीशन में रखते हैं, कितना दिन बाकी रहता है उतना रख देते हैं, वो हेल्दी, देन ही इज ब्रॉट आउट. दिस इज नॉट इंक्यूबेशन, करेक्ट. Same thing for industry. Suppose tomorrow Lester says, no, I want to start industry. I am going to make apps like Bahubali, that graphic designing I do. I want to do animation. He has the aspiration, good. He has got teammates. All students are with him. Lester is the leader now. They want to make. They have developed the skills, coding, all this graphic design. Learned. Where is going to make? बाप तो नहीं देगा घर में जगह. Then he'll come to the college. सर मेरे को एक जगह दे दो, मैं इंक्यूबेशन करता हूँ. सो व्हाट पीपल डू नाउ इन ऑल द कॉलेजेस, दे विल हैव सम स्पेस, टेबल रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, लाइट फैन सब रहेगा. तू बना यार, तो यहाँ पे. नाउ अंडरस्टूड. कब तक इंक्यूबेशन? जब तक तू साहूकार लेस्टर नहीं बन जाता. करेक्ट है कि नहीं? जब तू साहूकार लेस्टर बन जाएगा, तब तू बोलेगा भाई तेरा क्या लगा भाई, मैं अपना खुद का खोलता हूँ, मेरा अपना ऑफिस बनाता हूँ. करेक्ट है ना? यू अंडरस्टूड ना? No, I tell in a very simple way, but you understood na the point. Lester, don't take it personally. You are the only guy sitting today, so you are the star. And even they do some raw material procurement also. They do, and even they help in marketing. Suppose अभी Lester ने बना दिया, Lester EV बनाया उसने. अभी खरीदना भी चाहिए ना लोगों को, तो उसको मार्केटिंग के लिए भी दे हेल्प. तो हाउ दे हेल्प इन मार्केटिंग बोले तो, ये बड़े बड़े सिटीज़ रहते हैं ना, वहाँ एग्जीबिशन करते हैं. सीन एग्जीबिशन, इन एग्जीबिशन लॉट ऑफ पीपल विल गो, स्पेशली लेडीज विल गो मोर. है कि नहीं? जाते कि नहीं? हाँ,
सब जाते हैं। क्यों? चुप देखने के लिए, क्या बनाया है, क्या बनाया है कि नहीं? हाँ, क्यूरियोसिटी, ये क्या डिज़ाइन है जी, इनका क्या डिज़ाइन है, करेक्ट है कि नहीं? दिस इज व्हाट, एंड दे हैव गॉट ए इन्फ्लुएंस ऑन देयर हस्बैंड्स एंड देयर पेरेंट्स एंड ऑल। वे पापा दिस इज वेरी नाइस, यू बाय लाइक दिस, ओके। हाँ, ये एग्जीबिशन इसी के लिए रहते हैं, टू अट्रैक्ट ह्यूज क्राउड्स, सो दे डू दैट, ओके। मशीनरी करते हैं, देयर इज समथिंग हायर परचेज, यू नो हायर परचेज, एक पैसा देकर पूरा खरीदने का इज परचेज। हायर परचेज में इंस्टॉलमेंट देता हूँ भाई, थोड़ा 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 देता हूँ, बाद में जब खत्म हो जाता है देन मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करो, समझ में है ना? दिस इज हायर परचेज। एंड SSI विल आल्सो गिव गाइडेंस, दे विल गिव गाइडेंस। आप समझ में, व्हाट इज KSSIDC, KIDB समझ में आ गया ना? नेक्स्ट फाइनेंस का आ गया। अब फाइनेंस कौन देने वाला तुमको है? बैंक वाला देने वाला, करेक्ट है ना? बैंक में भी उनका इंडस्ट्रियल के लिए बैंक रहता है, बट हम लोग क्या किए, बैंक में सबको लोन देता है यार। बैंक में अभी ये जाएगा, सर मेरे को कार खरीदना है, कार को भी लोन देता है। सर मेरे को घर बनाने का, घर को भी लोन देता है, करेक्ट है? ये बोले सर मेरे को जाने का, स्टडीज़ करने का अमेरिका, मेरे को लोन दे, वो भी देते, स्टडी लोन देते हैं। तो खिचड़ी है वो। तो तुम्हारा सेपरेट इंडस्ट्री के लिए दे ओपन SFC, क्या होता है उसको? स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अभी कर्नाटका का है तो उसका नाम क्या है? KSFC, कर्नाटका स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये इंडिपेंडेंस के बाद में चालू किए लोग 1948 में, ठीक है। पंजाब में 53 में चालू हुआ। वैसे आई थिंक हर एक मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दे हैव गॉट देयर ओन SFCs। कर्नाटका हैज़ गॉट इट्स ओन SFC, दैट इज स्टेट फाइनेंस। गोवा का भी, गोवा स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। सो उसका क्या बॉस रहता है कि MD रहता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, देन देयर विल बी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट टीम, ओके। ये किसको लोन देते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को देते हैं। लाइक नाउ दे उनका दे गिव मोनली, अभी ये जाके सर मैं जा रही हूँ अमेरिका पढ़ने को, वो नहीं देता लोन। स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज फॉर मेनली फॉर इंडस्ट्रीज, प्रमोटिंग इंडस्ट्रीज, करेक्ट, स्पेशलाइज्ड। क्योंकि दे कैटर टू द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड दे एक्सटेंड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मीन्स, मीडियम मीन्स देखो आई टोल्ड लोन इज 2 टाइप, कैपिटल लोन, टर्म लोन, एंड सेकेंड इज वर्किंग कैपिटल लोन। अभी बड़ा लोन कौन सा है? टर्म लोन है क्या वर्किंग कैपिटल लोन है? टर्म लोन बड़ा है, उसका देने का पीरियड भी क्या है, रिपेमेंट पीरियड क्या रहेगा? लॉन्ग रहेगा। वर्किंग कैपिटल लोन क्या रहेगा? शॉर्ट, उसका रिपेमेंट क्या रहेगा? शॉर्ट, करेक्ट है ना? हाँ, KSFC दे गिव्स मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स, ठीक है, टू यूनिट्स विच फॉल आउटसाइड द परव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड पब्लिक सेक्टर बैंक। तुम अभी स्टेट बैंक को गए तो पूछे तो बोलेगा स्टेट बैंक, नहीं यार मैं तुमको इतना पैसा नहीं दे सकता, मेरा लिमिट इतना ही है बाबा, करके वो बोल देता। सो बियॉन्ड दैट दिस विल कम, समझ? सो व्हाट आर द फंक्शंस और एक्टिविटीज? अभी यू आर ऑल प्रोफेशनली क्वालिफाइड। सो प्रोफेशनली क्वालिफाइड टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर प्रोफेशनली क्वालिफाइड men and women entrepreneurs interested in starting their own project. Financial assistance for expansion, modernization and mechanization of existing setup. सपोज अभी ये लेस्टर बना दिया, फैक्ट्री बना दिया, चल रहा है, 1 साल 2 साल हो गया, अच्छा बिक रहा है, आगे ना लेस्टर बोल रहा है यार मैं महीने को सिर्फ 100 बना रहा हूँ बाइक, आई वांट टू मेक 200, एक्सपांशन, करेक्ट है ना? मॉडर्नाइजेशन, अरे यार अभी सब हाथ से हम लोग लेके आ रहे हैं, हम मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट खरीदते हैं, मैकेनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, उसके लिए क्या करेगा? और लोन लेगा, तो दे विल गिव, नॉट ओनली वन टाइम लोन, अगेन यू कैन बोरो, करेक्ट? कुछ सिक यूनिट होते हैं, क्या होते हैं? अभी यहाँ पे भी हर जगह यू सीन लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज हैव टर्न सिक, मेनी रीजंस फॉर दैट। तो उसको सिक, सपोज somebody says no, I want to buy sick and I want to run it. Suppose a hospital is there, that is sick, they are not running well. You can take up that and run. Sick, समझ आया ना? Sick unit को भी ले सकते हैं. They provide loan for land, building, machinery and other facilities. Then ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को भी देते हैं, टैक्सी, टूर ऑपरेटर्स रहते हैं ना, उसको भी देते हैं,
EDP. What is EDP? Anybody? Very good. Entrepreneurship Development Program. EDP is Entrepreneurship Development Program. अभी देखो, you have to become entrepreneur. So how you will become entrepreneur? You have to learn how to become. So that training, whatever is given, is called as EDP, Entrepreneurship Development Program. समझा? एंड सम एनवायरमेंटल कंट्रोल के लिए कुछ इक्विपमेंट लगाना है तो उसके लिए भी लोन देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट KIADB, कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड. दिस वाज सेटअप इन 1996. ठीक है. ये क्या करता है? लैंड एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड अलॉटमेंट. क्या करता है? लैंड एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड अलॉटमेंट. लैंड एक्विजिशन मतलब क्या? व्हाट इज लैंड एक्विजिशन? लैंड नहीं है ना, तो खरीदना है ना. किससे खरीदना है? फार्मर से, विलेजर से. दैट इज कॉल्ड एज लैंड एक्विजिशन. डेवलपमेंट मतलब क्या? रोड्स बनाना है, पानी का सिस्टम, ड्रेनेज का सिस्टम, करंट का खंबा. दिस इज ऑल डेवलपमेंट. कैंटीन, दैट इज डेवलपमेंट. अलॉटमेंट, इसने एप्लीकेशन डाला, उसको दिया, उसने एप्लीकेशन डाला. समझ आया ना? KIADB डज दिस. ठीक है. एंड दे स्टार्टेड लॉट ऑफ नाउ व्हाट हैज हैपेंड नाउ, लाइक लॉट ऑफ क्लस्टर्स हैव कम. लाइक इफ यू गो टू गोवा, लॉट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आर देयर. इफ यू गो टू बेलगाम, लॉट ऑफ फाउंड्रीज आर देयर. एक एक क्लस्टर बन गया. वो बोला ना, एक पान का दुकान खोला तो सब लोग पान बाजू में पान खोलते हो, वैसा. तो वी हैव गॉट लाइक एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क इन बेंगलोर, हेब्बाल इन मैसूर. ठीक है. तारियाल इन धारवाड़, काकती बेलगाम. एंड वैसा ही क्या किए, ऑटो पार्क बेलगाम में ऑटो नगर करके खोला, देखा ना, फॉर ऑटोमोबाइल एंसेसरीज के लिए बनाया. देन बायो पार्क, ऐसे अलग अलग. एंड SEZ इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. ये बेलगाम यू सीन क्वेस्ट कॉल्ड एक्वेस, AEQUIS एक्वेस करके है. उसके लिए वो लोग खोला है. स्पेशल भी बना, स्पेशल तुम्हारे लिए. अगर कोई बोलेगा मेरे को सिर्फ कपड़े का बनाने का, सिर्फ 10-15 लोग जाते हैं मेरे को कपड़े का बनाने का, तो उसके लिए एक स्पेशल, वहाँ सब कपड़े के ही रहेंगे. यू अंडरस्टैंड? नाउ these are about this. You will see some non-financial institutions like SISI. क्या है? SISI, Small Industries Service Institute. क्या बोलते हैं उसका नाम? वो लोग क्या करते हैं? पहला तुमको ट्रेनिंग देते हैं. हाँ, ट्रेनिंग भी देना चाहिए ना. बोला ना तुमको ट्रेनिंग. EDP बोला, दे आल्सो कंडक्ट EDPs. सो दे SISI इंटरेक्ट्स बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में इंटरफेस का काम करते हैं. दे प्रमोट दिस एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन प्रोग्राम्स. ओके. देन यू वांट एनी टेक्निकल प्रॉब्लम, लेस्टर इज हैविंग प्रॉब्लम, सर बैटरी अच्छा नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा, देन दे विल गिव सम एडवाइस ऑन टेक्निकल ऑल्सो, सपोर्ट देते हैं. ठीक है. प्रमोशंस करते हैं इंडस्ट्री के बारे में. ठीक है. एंड सपोज लेस्टर वांट्स नाउ, सो उसके बैटरी चाहिए, उसको टायर ट्यूब चाहिए, तो बाजू में कोई छोटे से इंडस्ट्रीज उसको भी प्रमोट कर सकते हैं. चलो यार यही भी बना के दे दो. एक्चुअली चाइना टुडे इज द वर्ल्ड लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग. यू सी मोस्ट ऑफ थिंग्स आर चाइना. भाई ऐसा उन्होंने हब बना रखा है. एक आदमी मोबाइल बना रहा था, एक गांव में पूरे मोबाइल ही बना रहे हैं, मोबाइल के ग्लास बना रहे हैं, कोई मोबाइल कवर बना, ऐसा मॉस्किटो बैट बना रहे हैं, तो सब वही बना रहे हैं. सो टॉयज बना रहा है, तो सब नज़दीक में ही है. ऑल द थिंग्स आर नियर बाय, तो यू विल गेट इमीडिएटली, नो डिले, नो. नहीं तो मेरा बैटरी अमेरिका से आ रहा है, कैमरा जापान से आ रहा है, वो आने का टाइम लगता है ना. कोऑर्डिनेशन बहुत सर्टेन है. यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर. दिस इज a single window concept. Single, I think I told you na, when I first time when I went for valuation of this exam, instead of single window he wrote single widow scheme. तो मैं परेशान हो गया, ये कौन सा इंग्लिश में पढ़ के आया यार करके. समझे ना? नाउ आई कम टू दैट सब्जेक्ट. सिंगल विंडो स्कीम. सिंगल विंडो मतलब तुम बार बार इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ नहीं, एक जगह जाओ, उसको दे दो सब, वो करेगा तुम्हारा.
The main function of DIC is to act as the chief coordinators or multifunctional agencies in respect of various government department and other गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी है तुम्हारा, इलेक्ट्रिकल लाइसेंस चाहिए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चाहिए, रजिस्ट्रेशन करने का है, सब कुछ वहीं पे मिल जाएगा. दैट को सिंगल विंडो स्कीम. देयर आर अबाउट 400 DICs इन इंडिया. ठीक है, विच सपोर्ट दे गिव यू इन्फॉर्मेशन लॉट ऑफ. इफ यू गो टू DIC ऑफिस कारवार, दे विल आल्सो गिव इन्फॉर्मेशन, कितने इंडस्ट्रीज है, क्या करते हैं, ऑल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल विद देम. कंसल्टेंसी करते हैं. ओके, so everybody is into promoting small industries in rural villages, small towns. ठीक है, so all the information what the entrepreneur wants is available with DIC in one roof, under one roof, and it serves as an integrated administrative framework at a district level. These DICs are available at which level? Every district. So they do the survey. यहाँ क्या चल सकता है, क्या नहीं चल सकता. They do survey like market survey, feasibility survey. We have studied ना, surveys also they do. कौन सा इंडस्ट्री चल सकता है, कौन सा नहीं चल सकता है. And whatever government plans are there, they try to implement. And if he takes a project and goes, now Lester comes with a project. So if he says only electrical vehicle, small vehicle, he will say okay. If he says no, I want to make big cars, then कार रोड किधर है यार, सर लेके जाने वाला किधर है, उसको आने का जाने के लिए सब ये होता है ना. So that guidance they will give. And they also deal with training, artisans, pottery, stitching, all the small welding, all this training, na, they provide training also. This was about DIC. Now we look at NSIC. Okay? Last two we will see. NSIC, that is National Small Industries Corporation. This is National Small Industries Corporation. This was set up with the Indian Ministries of Industries in 1955 to promote, aid and foster the growth of small industries in this country. It provides a lot of services, especially to the SSI, small scale industries. To provide machinery and hire purchase scheme. अब तेरे को मशीन खरीदना है, कहाँ से खरीदने वाला है? NSIC. DIC is not selling machine. KIDB is not dealing with machine. KIDB land, DIC information, registration. Finance KSFC. Then NSIC for machinery खरीदने के लिए, hire purchase. Leasing facility they arrange. Export. Suppose his product is very good, ready level, they can help him export. Good. बल्क परचेज प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट अगर खरीदना चाहता है कि अरे वी वांट टू गिव 100 स्कूटर्स टू ऑल द पीपल, सो दे कैन बाई फ्रॉम हिम. गवर्नमेंट कैन बाई ना, गवर्नमेंट विल बाई थ्रू NSIC. समझ? टू डेवलप प्रोटोटाइप ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स टू पास ऑन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन. टू डिस्ट्रीब्यूट बेसिक रॉ मटेरियल. तुम्हारा रॉ मटेरियल चाहिए ना, तुम्हारा लेड एसिड बैटरी हो, लिथियम बैटरी हो, टायर्स हो, ट्यूब्स हो, इलेक्ट्रिकल, दे हेल्प इन दैट. अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग इन वेरियस ट्रेड्स. सो दीज आर ऑल द NSIC, National Small Industries Corporation. And last is TechSOC. We call it TechSOC, Technical Consultancy Service Organization of Karnataka. ठीक है, these organizations are highly useful for entrepreneurs in providing many services and for all the states. In Karnataka it was established in 1976 by government of Karnataka. ठीक है, उसका हेड ऑफिस बेंगलोर में है. एंड इट हेल्प्स यू इन द टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखने के लिए दे हेल्प करते हैं. क्या करते हैं? प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए, राइट. तो उनका सपोर्ट जो है, इट कैन बी इंडस्ट्रियल सपोर्ट, मैनेजरल सपोर्ट, technical support, all supports they provide. They want to develop entrepreneurs, self-employment in the state of Karnataka. To provide consultancy service to various departments and agencies of state and central government. So ये लोग क्या करते हैं? Identification of project ideas and investment opportunities, identification of suitable locations for set up land. अभी कहाँ पे इंडस्ट्री बनाना है वो आइडेंटिफाई करते हैं लोग. कंसल्टेंसी है, कुछ करते नहीं है, बिल्डिंग नहीं दे रहे, लोन नहीं दे रहे, कंसल्ट इंटेलिजेंस है इधर. समझा ना? मार्केट सर्विस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्विस कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, एनर्जी ऑडिट्स कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बात कर रहे हैं,
Then techno-economic feasibility report. Techno-economic feasibility means technical feasibility plus economical feasibility. That is called techno-economic feasibility report. DPR, detailed project reports. मॉडर्नाइजेशन स्टडीज़, ठीक है, तुमको लाइसेंस कैसे लेने के लिए भी हेल्प करते हैं और गवर्नमेंट का इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, क्या नया गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना रहा है, प्रोग्राम बना रहा है. सो दिस वाज अबाउट यू आर सीन कि व्हेन यू वांट टू स्टार्ट ए इंडस्ट्री, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ स्टार्टिंग इंडस्ट्री, वी आर सीन द स्टेप्स. एंड देन नेक्स्ट वी आर सीन what this organization we require. You are seeing your needs, like you require land, building, finance, raw material, machinery plant, marketing, sales. Cut who is doing it? So you have got KIDB, KSSIDC, KSFC, TechSoft, NSIC, all these organizations, what they are doing, that you have studied. Okay.